Very good morning, dear students. Now, as we have discussed in the last class, the various types of natural vegetation which is seen, okay, like the different types of forest, like mangrove forest, mountain forest, okay, and the shrubs and bushes, tropical evergreen forest and tropical deciduous forest. These are the various forests we have studied yesterday. So students, today we will talk about the various types of wildlife which is seen in different parts of India, and the specifically we will see about the India. So like the flora, let's start. Like the flora, India is very rich in its flora. Like its flora, India is very rich in its fauna. As we have discussed, flora means the plant species and the plant life, and fauna means the animal life. So what we are saying through this, that like the different types of plant species, India is also very rich in different types of animals and the birds species. So students, let's start. So approximately 90,000 animal species are found in India and 2,000 species of birds are found in India, and both are combinedly 13% of the world's total animal and bird species. And here in India, 2,546 species of fishes are found, which is about nearly 12% of the world's stock, and 5 to 8% of the world's amphibians, reptiles and mammals are also found in India. Now, these varieties we have seen that approximately number we have seen that how much number of species of birds, plants, fishes and reptiles are in India. Now, mainly we will see about the animals which are found on land and which places these are found in India. Like if you talk about the animals living on land, among those elephants. So in India, elephants are found. And these are found in the hotbed forest of Karnataka, Kerala. Okay, we can write here also that elephants are found in hot and wet forest of Assam, Karnataka, Kerala. Okay, and if we talk about one horned rhinoceros, so one horned rhinoceros found in the swampy and marshy areas of or land areas of Assam and West Bengal. If we talk about the arid areas of run of Kutch, okay, जो arid areas हैं, जो dry areas हैं, कहाँ पर जैसे रन ऑफ कच्छ में था डेजर्ट में, तो वहां पर क्या है, वाइल्ड डैश हमें देखने को मिल जाएगा. ओके, एंड कैमल्स वी विल सी. अदर देन दिस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो रन ऑफ कच्छ, and the next one is Thar Desert. Okay, in these places you will see wild ash and camels. If we talk about Indian bison, nilgai, chausinger, gazelle, these are the varieties of deer are also seen in India, and we also see different varieties of monkeys in India. Now, if we talk about India, sorry, tigers and lions, India is the only country in the world where both tiger and lions are found. Like tigers you can see in the forest of Madhya Pradesh and Sundarban forest of Bengal, and for lions, Gir forest is the only place in Gujarat. Okay. Before 1962, cheetah was also found in India, but later it extinct. Okay. वर्ल्ड में तो अभी भी मिलता है, और इन जू आल्सो यू कैन सी व्हिच आर ब्रॉट फ्रॉम द अदर डिफरेंट कंट्रीज. ये सब हमने देखी द एनिमल्स वी हैव व्हिच आर लिविंग ऑन लैंड. नाउ वी विल सी अबाउट द एनिमल लाइफ ऑफ हिमालयाज. ओके, तो एनिमल लाइफ ऑफ हिमालयाज में अगर हम देखने को मिलेंगे यानी कोल्ड एरियाज में, तो याक वी विल सी, बराल, रेड पांडा, आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, Tibetan antelope, Tibetan wild dogs. These are the different animals which are seen in the Himalayan regions. एंड ये हमने हिमालयंस के बारे में देख लिया वाइल्ड लाइफ. इधर हमने लैंड के बारे में वाइल्ड लाइफ देख लिया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट रिवर्स, लेक्स एंड कोस्टल एरियाज,
So in rivers and lake, turtles, crocodiles, gharials, okay, snakes, etc. are seen. And if we talk about birds, so many birds are there in India like peacock, duck, cranes, pigeon, many etc. Many are still there. And as we have seen, the animals life in Himalayas, animal life in coastal areas, lakes, rivers, and animal life on land. Okay. Now we will see about the threat to flora and fauna. भाई हमारे कंट्री में जो थ्रेट है, जो खतरा है फ्लोरा एंड फोना को, वो क्यों है, अब वो हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि ऑल स्पीशीज आर इम्पोर्टेंट एज पर द इकोसिस्टम. ठीक है, सभी जो एनिमल स्पीशीज हैं या प्लांट स्पीशीज है, सभी इम्पोर्टेंट है किसके लिए, फॉर द इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स दे शुड बी कंजर्व, मतलब कि उनको कंजर्व करने की भी क्या बहुत ही जरूरत है. सो पहले थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं. इंडिया में 1300 प्लांट स्पीशीज आर एंडेंजर्ड, जिनको खतरा है एक्सटिंक्ट होने का, एंड 20 स्पीशीज आर एक्सटिंक्ट. 20 प्लांट स्पीशीज बिल्कुल खत्म हो गई है. इसका अगर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि लोटस कार्निकुलेटस करके एक प्लांट था जो कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, और ऐसे ही अगर बर्ड्स एनिमल्स की बात करें तो डोडो एक बर्ड था वो, और चीता जो है इंडिया में वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. These are the examples of extinct animals and plants. Now we will see about the meaning of biodiversity. भाई बायोडाइवर्सिटी का मतलब है क्या. तो बायोडाइवर्सिटी जो है इट रेफर्स, यहाँ पर जो है टर्म्स इनका मीनिंग भी देख लेते हैं. तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी है और वेरिएशन है एक दूसरे में जो भी लाइफ एग्जिस्ट कर रही है अर्थ पर. जैसे इसमें इंक्लूड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट, डेजर्ट, नंबर एंड अबंडेंस ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स. ये सभी चीजें किसमें आ जाती हैं, किसमें आ जाती हैं, प्लांट या फिर बायोडाइवर्सिटी. याद रखना, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी, अंतर एक दूसरे में, ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ. तो जब वेरिएशन होगा तो हर तरह की लाइफ आ जाएगी, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ तक कि इकोसिस्टम भी आ जाएंगे जिसमें फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, अबंडेंस ऑफ स्पीशीज, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा. अब माइग्रेटरी बर्ड्स की अगर बात करें तो कई बार क्या होता है, सीजनल चेंजेस की वजह से, टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से सीजन टू सीजन कुछ जो एनिमल्स है वो माइग्रेट कर जाते हैं. दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है, माइग्रेटरी बर्ड्स. अगर एग्जांपल के तौर पर देखें कि विंटर के टाइम जो साइबेरियन क्रेन है वो बहुत ज़्यादा मूव कर जाते हैं, एंड वन सच प्लेस फेवरेबल विद दीज बर्ड्स इज द रन ऑफ कच्छ. यानी विंटर के टाइम जो साइबेरियन क्रेन्स है, दे यूज टू कम टू इंडिया इन एट द प्लेस रन ऑफ कच्छ, एंड एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्जेस विद द सी. वो प्लेस, वहाँ पर जो डेजर्ट है वो सी से मिल जाता है बिल्कुल. तो ये एक एग्जांपल है, एंड मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स यूज टू कम टू डिफरेंट प्लेस ड्यू टू द चेंज इन वेदर और सीजन. ओके, नाउ वी विल सी अबाउट व्हाट आर द कॉजेज ऑफ थ्रेट टू प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ. थ्रेट या फिर खतरा क्यों है जो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है उसको. जैसे हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर्स फॉर कमर्शियल पर्पस. कुछ जो है हंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं एनिमल्स का, ऑल्दो इट इज स्टॉप्ड बट देन ऑल्सो इलीगल तरीके से पॉचिंग करते हैं एनिमल्स का. उससे क्या करते हैं फिर कमर्शियल पर्पज, यानी फॉर सेलिंग द प्रोड्यूस इन द मार्केट. जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो वन हॉर्न डायनासोर है उसके जो हॉर्न से क्या बनता है, एक मेडिसिन बनती है उसके पाउडर से. तो लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं उसे, किल कर देते हैं. ठीक है, उसके लिए फॉर, और उस हॉर्न के बहुत ज़्यादा प्राइजेस मिलते हैं. इसलिए कई बार एसिड डिपॉजिट्स हो जाते हैं. ठीक है, उसकी वजह से भी डेथ हो जाती है वाटर बॉडीज वगैरह में. फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल स्पीशीज, कई बार दूसरे ऐसे एनिमल स्पीशीज यहाँ पर आ जाते हैं, बर्ड स्पीशीज आ जाते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी जो रह रहे होते हैं स्पीशीज, उनको मार देते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं. तो दिस इज ऑल्सो रीजन फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ और थ्रेट टू प्लांट एंड एनिमल लाइफ. देन रेकलेस अनस्टॉपेबल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन एंड अदर पर्पजेस. बहुत ज़्यादा स्केल पर जो कटिंग हो रही है ट्रीज की,
क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं बर्ड्स के, एनिमल्स के, जिनका होम है क्या, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो वेयर दे विल लिव. So this is also one of the main reason for the extinction and threat to bird and animal life. Next is pollution due to chemical and industrial waste. बहुत ज़्यादा जो इंक्रीजिंग लेवल है पॉल्यूशन का, वो भी अफेक्ट करता है किसको, वो भी एक रीज़न है फॉर थ्रेट टू एनिमल्स एंड बर्ड्स. क्योंकि एनिमल्स आर नॉट मच अवेयर लाइक ह्यूमन बींग्स, उनको नहीं पता है. कई बार वाटर बॉडीज, इंडस्ट्रियल जो केमिकल वेस्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है कहाँ पर, यमुना का एग्जांपल ले लो या दूसरे आसपास के रिवर्स में, और फिर वहाँ पर क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है जो एक्वेटिक लाइफ है या फिर जो अदर स्पीशीज है, वो उस वाटर को यूज कर लेते हैं फॉर ड्रिंकिंग एक्सेट्रा. So these are the major reasons for threat to the animal and the bird life. Now we have seen that there are many uses. देख लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा medicinal plants हैं, उनके अलग uses हैं, ठीक है. Other than this, animals also provide milk. वो होते हैं जो milk providing animals हैं. जो animals हमें milk provide करते हैं उनको milk animals बोल देते हैं. Other than this, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स को. फिश जो है एक न्यूट्रिटिव फूड है. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स में बहुत हेल्प करते हैं, और जो फ्रूट ट्रीज वगैरह के पॉलिनेशन में, प्लस में वो जो बायोलॉजिकल कंट्रोल है, एक जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखते हैं. तो मेनी रीजंस आर देयर फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. तो कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज लाइक ह्यूमंस, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. प्लस दे आर वेरी यूजफुल टू ह्यूमंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल. they provide milk to us as they are milk animals, and they provide there are many medicinal plants. Fish is a very nutritive food. Insects help in pollination of crops and fruits and maintaining ecological balance. So but the excessive exploitation of plants and animals led to the extinction of many species, and it is keep on going. So we have seen the reasons to conserve, we have seen the causes of threat. Now we will see about the steps taken by government for protecting the flora and fauna. तो अगर हम बात करें इसकी, बायोडाइवर्सिटी हमने देख लिया, माइग्रेटरी बर्ड्स हमने देख लिए हैं. अब अगर बात करें किसकी, तो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है. 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉजेस आपको अच्छे से पता होना चाहिए, रिच डाइवर्सिटी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, प्लस में क्यों कंजर्व करना है वो पता होना चाहिए. ओके, तो स्टेप्स क्या हैं. First is 18 biosphere reserves have been set up in the country to protect flora and fauna. 18 biosphere reserves अभी डिस्कस करेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है, जूलॉजिकल गार्डन्स के बारे में. तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व सेटअप के इतना या अभी आप ध्यान रखो कि जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो सबसे बड़ी यूनिट है. उसके बाद फिर नेशनल पार्क्स, और उससे छोटी फिर क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नेशनल पार्क्स में पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए होता है, जैसे टाइगर नेशनल पार्क्स वगैरह, पर्टिकुलर एनिमल या स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए. सबसे बड़ा जो इसमें होता है वो है बायोस्फीयर रिजर्व्स. सो इन इंडिया 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर which are set up to protect flora and fauna. और 10 जो है इस 18 में से 10 कौन कौन से, सुंदरबंस, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, रॉक रिक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपल, पंच माही, अचनाकर्मक, अमरकंटक. ओके, these are included in the वर्ल्ड्स नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा मैप में देखना पड़ेगा, सारे नहीं पढ़ने हैं. मैप भी है इस लेसन में से, फॉरेस्ट वाला मैप आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लस आपको लोकेट करने के लिए बोल दिया जाएगा डिफरेंट नेशनल पार्क्स. ओके, तो मैप प्रैक्टिस ऑल्सो यू विल डू इन दिस लेसन. तो मैप में जो इम्पोर्टेंट दे रखे हैं वही आपको पढ़ने हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल and technical assistance is provided to many botanical gardens by government since 1992. तो जो botanical gardens है जहाँ पर अलग अलग species of plants वगैरह प्रोटेक्ट करके रखी जाती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट करती है उनको गवर्नमेंट. टाइम टू टाइम उनको फाइनेंशियल तरीके से हेल्प दी जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर
जो है कच्छ है, कोल्ड डेजर्ट है, शेषाचलम है, पन्ना है, तो इन प्लेसेस एंड बॉटनिकल गार्डन्स को गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करती है फॉर प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द प्लांट स्पीशीज. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर इज ऑल्सो स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट. प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो इन प्रोजेक्ट्स को भी स्टार्ट किया है गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली टू प्रोटेक्ट सच एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, जिनको खतरा है बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने में. उसके अलावा 104 national parks are there in the country and 544 wildlife sanctuaries and zoological gardens are set up to take care of the natural heritage. तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत बड़े लेवल पर नेशनल पार्क स्टैब्लिश करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. नेशनल पार्क में जो एरिया होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ में ओपन एरिया होता है फॉर द एनिमल्स एंड प्लांट्स, और बायोस्फीयर उनसे भी बड़ा एरिया होता है. तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइम टू टाइम जो ये नंबर इंक्रीज कर देती है नेशनल पार्क्स का, इनको कंजर्व करने के लिए. और इतना हमें समझ जाना चाहिए कि ऑल द स्पीशीज आर इम्पॉर्टेंट इन आवर इकोसिस्टम फॉर आवर सर्वाइवल. एंड अगर हम ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से डिस्ट्रक्शन करते रहेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो ये हमें एक इमीडिएट एंड प्रोवाइड करेगा. इट विल डिस्टर्ब द ह्यूमन लाइफ completely. So what other pictures are given in this, you can see government on save vulture task. So okay, various articles are there. कई बार डिमांड भी हो जाती है एनिमल्स को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. इवन स्ट्रीट एनिमल्स को भी गवर्नमेंट क्या करती है, कोशिश करती है प्रोटेक्ट करने के लिए. और लास्ट में आपने देखा कि जो एक केरला का इंसिडेंस है, जो एक हाथी है वहाँ पर उसको लोगों ने क्या कर दिया था, अनानास खिला दिया था फुल ऑफ क्रैकर्स. तो सच काइंड ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी डन. वो एक क्या है, बहुत ही गलत है, ठीक है. दिस सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज शुड नॉट बी डन एज इट इज वेरी वेरी रॉन्ग. इट इज अ इनह्यूमन एक्टिविटी. ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स and animals. Okay, this is very important. So students, if we talk about the map, as we have done the map of tropical forest and all, in this lesson you will show the various bird sanctuaries, national parks and wildlife sanctuaries. You have to tick mark what I am saying. Only those things you will show. Okay, listen carefully. Please tick mark Dhachigam, Rajaji, Corbett, Sariska. You have to tick mark in your book. I will repeat once again. Tick mark in the wildlife reserves, figure 5.8. जो मैप दे रखा है उसमें कौन सा मैप, बर्ड सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ वाला मैप. तो इसमें आपको टिक मार्क करना है किसको, धचीगम को, कॉर्बेट को, राजाजी, सरिस्का, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, शिमलीपल, मानस, काजीरंगा, रंगनथिट्टू, मधुमलाई. Again I am repeating from the eastern side. Kaziranga, Manas, then in the south Madhumalai, Ranganthittu, then in the middle or central India Kanha, Shimlipal, then above it Shivpuri, in Rajasthan Ranthambore, Sariska, Corbett, Rajaji, Dhachingam. These places only you have to show in map. Okay, so students, revise the topic well. I am discussing the objective of exercise to you. To which one of the following types of vegetation does rubber belong to? So 4 options are there. Means रबर जो वेजिटेशन है वो कहाँ मिलेगा, टुंड्रा में नहीं मिलेगा, टाइडल फॉरेस्ट में नहीं मिलेगा, हिमालयन में बिल्कुल नहीं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगा क्या, रबर. Cinchona trees are found in the areas of rainfall more than 100 centimeter is the correct answer. In which of the following state is Simlipal Bioreserve located? West Bengal. Simlipal is located in West Bengal. Something is wrong, I think. Okay. वेस्ट बंगाल में बिल्कुल बॉर्डर में शो कर रखा है इसको. पंजाब, उड़ीसा हो सकता है, ठीक है, जहाँ तक है. ओके, लेट मी चेक एंड देन टेल यू.
Which one of the following bioreserves of India is not included in the world's network of bioreserve? So Manas is the correct answer. So students, what you can do in exercise, which questions you have to do, tick mark please. First question, define ecosystem. You will not do because you have done yesterday. What are the factors responsible? You have done. What is a bioreserve? Give two examples. This you will do. Name two animals having habitat in tropical and mountain forest. To two animals tropical के आप बता सकते हो कि elephant and deer, और mountain के बना सकते हो yak and snow leopard. Distinguish दे रखा है between flora and fauna, तो इसमें आपको डिफरेंस बताना होगा. ट्रॉपिकल एवरग्रीन डिसीडियस का भी डिफरेंस आपको बताना होगा. ओके, ऑल क्वेश्चंस यू विल डू, लाइक 6th क्वेश्चन यू विल डू, 5th क्वेश्चन यू विल डू, 4th ऑल्सो यू विल डू, एंड 4th वैसे आपका नहीं हुआ है. ओके, डिस्क्राइब हाई एल्टीट्यूड, तो वेजिटेशन आपने माउंटेन फॉरेस्ट कर तो लिया है पूरा. 4th क्वेश्चन रहने दो. 5, 6 you will do, 3rd you will do, and in second only 3rd is remaining. उसको बुक में ही कर लेना, कॉपी में आप सिर्फ करिए 3rd, 5 and 6. ओके, इसमें कवर हो जाएगा सारा कुछ. एंड रिवाइज द टॉपिक वेल. थैंक यू.